Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in last few days, lot of data is released as far as inflation is concerned, and that has direct bearing on banking sector. Now, yesterday the data of WPI released, and WPI for the month of April has touched 15.08%. This is highest in last 27 years, 3 decades. So that we were discussing in the earlier video also. In developed countries, already they are running 3-decade, 4-decade highest inflation. Now India is also affected. So India WPI has touched 27-year high, 15.08%. Some of you might not have born when last such high inflation was seen. And what is the reason for this high inflation? The reason is the price rise in mineral oil, high fuel prices, basic metals high price, natural gas high price, food item high price, chemical and chemical products high price. Then CPI. Now the consumer price index has also risen by 7.79%. Again, this is highest since 2014. Now this is more worrisome. When wholesale price index is abnormally high and CPI is 7.79% high, that means in coming days, CPI will also try to touch the WPI level. That means more pain is in store. The consumer price has not risen to the level where it should have been. That means some suppression of prices is artificially managed by certain companies. So this is worrisome. The third is, now what is the likely scenario when we are moving in such a high WPI, high CPI regime? What does it mean for the bank? What does it mean for the Reserve Bank of India? Now Reserve Bank of India has given 4% plus minus 2% as their inflation tolerance level. That means the highest level they are expecting was 6%. Now it is 2% above, approximately 2% above the tolerance level of CPI. That means we can see the increase in repo rate to the tune of 2 to 3% in coming days. 0.4% repo rate increase has already happened. That means we are now ready for another increase of 1.5% to 2% in coming days, maybe in traces. So that is the likely scenario. And when interest rates goes up, it is bad news for the consumer, those who have taken the loan to acquire their assets. Or for the manufacturing companies, those who have raised the high loan, keeping in view the low cost of money. So they have to pass on this cost to the consumer, further pushing the inflation. So once you go into the spiral of inflation, it becomes very, very difficult to break it. So it will be very challenging time for Reserve Bank of India to tame the inflation in future. And now we are in high interest rate cycle. So on this channel, I have covered many financial, banking and economic aspects in very simple language. Lot of videos are there. I have placed all the videos in playlist. If you watch 10 to 15 videos per day, you will develop excellent knowledge in the field of banking, finance and economics. All videos are free of cost. Usually such type of playlist may cost you 4,000, 5,000 rupees. But on this channel, everything is free as far as banking, financial and economic knowledge is concerned. For current affairs, I have suggested you a very good source. Link is available in description. Click the link, you will land up on an app. Download the app, take current year plan, apply coupon code AA03 to have 10% off. Read the current affair from there. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. पिछले दिनों में कुछ डेटा रिलीज हुआ और ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और ये डेटा है WPI का और CPI का.
WPI अगर हम देखें तो 15.08% पे पहुंच गई है अप्रैल के महीने में, जो 27 वर्षों की अधिकतम है। आप में से बहुत लोगों की ये उम्र से भी ज्यादा है। काफी लोगों ने इतनी इन्फ्लेशन कभी सुनी ही नहीं होगी। तो बहुत ये क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी हम 3 डिकेड 4 डिकेड हाई इन्फ्लेशन सुन रहे थे, अब इंडिया में भी 3 डिकेड हाई इन्फ्लेशन रीजन में हम पहुंच गए हैं, जो चिंता का विषय है। अब अगर इसको हम CPI के साथ देखें तो CPI भी 7.79% पे पहुंच गई है, जो कि 2014 के बाद अधिकतम है। वो भी चिंता का विषय हो गया। अब WPI इतना क्यों बढ़ी है, उसके कारण क्या है? उसके कारण है हाई फ्यूल प्राइस, बेसिक मेटल्स का बढ़ना, नेचुरल गैस की कीमत में वृद्धि, फूड आइटम खाने पीने की चीज़ों के अंदर वृद्धि, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में वृद्धि, मिनरल ऑयल्स की प्राइस में वृद्धि। तो देखेंगे आप ब्रॉड बेस तेजी आई है, लगभग सभी सेगमेंट्स के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं, जो चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि अभी भी WPI और CPI में बहुत अंतर है, और ये पुरानी इन्फ्लेशन से भिन्न है। नॉर्मली WPI CPI टेंडम में चलती हैं, और WPI बहुत नीचे होता है CPI से। तो यदि WPI CPI से ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब अभी महंगाई और बढ़नी है। मीन्स जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो होलसेल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, अभी कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं किया है, जो इंटरमीडिएटरी है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, अभी वो पेट्रोल डीजल की मार्केट प्राइस ना चार्ज करके मार्केट प्राइस से नीचे बेच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। तो वो शॉक खुद एब्जॉर्ब कर रही है। अगर उसको मार्केट प्राइस पे बेचना पड़े तो डीजल कम से कम 30 रुपये लीटर, और पेट्रोल अभी यहाँ से 4 रुपये लीटर और बढ़ सकता है, और ये वो लॉस बुक कर रही है। तो इसीलिए CPI अभी लोअर है WPI से, क्योंकि WPI तो उसका तो जितने में वो खरीद रही है वो आ रहा है वहाँ पे। ऐसे कहीं और भी ऐसे फैक्टर्स होंगे जहाँ पर वो अभी पूरी पास ऑन नहीं हुई है महंगाई का कंज्यूमर को। तो जब वो पूरी महंगाई पास ऑन होगी तो ये CPI और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया कि भारत में CPI 4% ±2% के दायरे में रहनी चाहिए, मीन्स 6% अधिकतम है। अब उसकी टॉलरेंस लेवल से ऑलरेडी ये लगभग 2% अधिक है। तो उसे क्या करना होगा? रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। ऑलरेडी 0.4% वो बढ़ा चुके हैं। मेरे हिसाब से कम 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे यदि हमें इफेक्टिवली इन्फ्लेशन को टेम करना है। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में 1.5% से 2% इंटरेस्ट रेट की वृद्धि होगी। और जब ये वृद्धि होगी तो जिन लोगों ने उधार लेके एसेट्स लिए हैं, या जो फैक्ट्रियां उधार के पैसे पे काम कर रही हैं, उनके ऊपर ये खर्चा बढ़ेगा, और वो उस खर्चे को यदि पास ऑन करती हैं कंज्यूमर के ऊपर तो प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। और इसीलिए जब एक हम स्पाइरल में फंस जाते हैं इन्फ्लेशन के, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आने वाला वक्त RBI के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में हम इंटर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही, ये हमें मानना पड़ेगा। अब इस चैनल के ऊपर बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं, जिसमें सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है इन एस्पेक्ट्स को। प्लेलिस्ट है, 10 से 15 वीडियो रोज की देखिए। सारी वीडियोस फ्री हैं ये। अगर इस तरह की प्लेलिस्ट आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे लेंगे 4-5 हज़ार रुपये आपको कॉस्ट करती है। यहाँ पर ये फ्री है, इसका फ़ायदा उठाइए। 10-15 वीडियो डेली देखिए। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए मैंने आपको अच्छा सोर्स बताया, उसका लिंक मैंने आपको दिया। इस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, करंट ईयर का प्लान ले लीजिए, कूपन कोड लगा लीजिए AA03, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।